monopolist can like control the amount, price, but he or she cannot control the selling amount, the selling product, how much a product can be sold. It is not in his hand. The buyer will decide according to the price that what amount of the product he or she needs. So even though when the monopolist have a full control over the price of the product, he still cannot have the power to make or to force people to buy a certain fixed amount. So I hope that the term monopoly has been cleared. We can say that monopoly is a form of market where there is a single seller or the producer of a commodity. There are no close substitute of the monopoly product, and also they are legal, they are technical, and they have some natural barriers, but the product being produced in the monopoly market are totally legal. For example, we can say Indian Railway. Do we have any substitute if compared to Indian Railway? We don't have. Why? Because Indian Railway is always a bulk carrier. We can go to any place with my own particular mode of transportation. That is, I can use my car, I can use my bicycle, or I can use an aeroplane. But the Indian Railway, that is, the railways have the tendency to carry people in bulk. So that is why we can say that Indian Railway have a monopoly. So now let's move forward with the topic, the term price discrimination. What do you all understand by the term price discrimination? Whenever the seller changes the price of according to their need, according to their situation, it is known as price discrimination. It is a practice or it is a strategy where the charging of the price fluctuates, or we can say varies from person to person. It depends on the seller at what amount he or she wants to a particular product to, suppose A, and he and she will only decide that what amount he wants to sell the same product to B. For example, let me tell you that I am a seller, I am producing a marker. For example, there are two customers, customer A and customer B. Customer A is my relative and customer B is someone I don't know. So under monopoly market, what can happen is me being the seller can sell the product that is the marker to customer A for rupees 50. But for the same marker, I will charge rupees 70 to the customer B. This is totally my decision, that is the monopolist decision. So under the heading price discrimination, we can say that it is a practice of charging various prices from various consumers for the same product. That is, when the seller charges different amount from different buyer for the same product, it is known as price discrimination. Price discrimination is generally possible only in monopoly market. Why it is only possible in monopoly market? This is a very important point, because under perfect competition market, what happens is whenever the seller, if he or she changes the price of that marker very frequently, he will lose its customer base. The customer will move ahead to the different buyer. But under the monopoly market, there is only one seller and the buyer are in a large amount. So the buyer cannot go outside the market. Why? Because there is only one seller. So under monopoly market, the seller can decide the price. But if the same practice is applied under the perfect competition market, it is not going to be favorable for the seller. Now, let's move forward. There are basically three assumptions necessary to exist discriminatory monopoly. And what are they? Resale of the product is not applicable. Let's take an example, that is Indian Railway. If any person, like if Mr. A purchases a ticket from Indian Railway, he or she cannot resell that ticket to another. So that is why if the reselling would be easy, अगर वहां पे रीसेल हो सकता था, तो फिर वो मोनोपोली मार्केट नहीं होता. क्योंकि ये मोनोपोली मार्केट है, तो वहां पे रीसेल जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा. फिर मार्केट पावर lies with the monopolist. The monopolist have the market power.
whenever he or she wants to make more product, or whenever he or she wants to sell more product, what they do, they can lower the selling price. And whenever they want to earn more profit, they can lower the selling price. But what if they want to retain their production or slow down their production? They can give a rise to their selling price. So market power totally lies with the monopolist. Yes, the price decision is a monopolist, but the amount to be taken or the amount to be purchased lies with the buyer itself. And also, under monopoly, there are different sets of customers or consumer. It is very possible that under monopoly, when a person sells the same product at a different price, and it is assumed that the two buyer does not know each other. Why? If they do know each other, there will be a quarrel, and the person from whom I have charged more, he or she can come back and have a fight with me. So to avoid this scenario, it is very important, or we can say it is a very important assumption that is set. So now we will move forward. What happens with the demand curve under monopoly? Let's, as you can see in the graph, I have made a graph that is price 1n. Whenever the price, if assume the price of the marker is rupees 10, the buyer will buy two marker. So we can say by charging rupees 20, by charging rupees 10, a buyer bought two products. But once we raise the charge, once we raise the price of that marker by from 10 to 20, the buyer will only buy one product. So there is a decline in the demand because of the rise in the price. So due to this, demand curve slopes downward under the monopoly market. So we can say that under the monopoly market, demand curves slopes downward, which shows an inverse relationship between price and quantity. If the price rises, the demand of the quantity will be low. If the price falls, the quantity demanded will be high. The monopolist, as I had already told you, that the monopolist can fix whatever price he or she wants to, but the amount to be purchased lies always with the buyer. Now, what happens under the revenue topic, revenue under monopoly? As you can see, I have mentioned a table with different units. Like under unit, we have under unit 1, we assume that the price of any product is 10. So if price of any product, we can say marker, is 10 rupees, and the unit will be purchased 1. So the total revenue will be 10 rupees. And what will be the marginal revenue? It will be 10 again. But if I lower my price from 10 to rupees 9, it might happen that the person will buy 2 marker, leading to the revenue, that is the total revenue, to 18, and the marginal revenue will be 18 minus 10 will be 8. So with this table, or we can say with this table, I have also mentioned a graph here, which shows that both the AR and MR, that is average revenue and marginal revenue, slopes downward. Average revenue slopes downward, which shows that monopoly firm must lower the price of the product in case he or she wants to sell more of it. If AR fall, that is, if average revenue falls, marginal revenue will also fall. In such situation, marginal revenue will be more than average revenue. That will be all under the topic price discrimination under monopoly. The second topic is the central bank. As we all know, India's central bank is Reserve Bank of India. It is the apex bank that controls the entire banking system of any country. Every country have their own respective central bank. For example, in England, it is known as Bank of England. In India, it is known as Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is known as the apex bank, that is the main bank.
What happens with this Reserve Bank of India? Reserve Bank of India control the entire banking system of any country. It is the sole agency of issuing note. Only Reserve Bank of India has the authority to issue note. No other bank have the right to issue note other than Reserve Bank of India. It serves also as a banker to the government and banker to the commercial bank. What does this mean? It means that whenever the government is in need of any financial assistance or any advice or advocate, Reserve Bank of India helps the government so that the economy of the country does not fall. Also, the Reserve Bank of India act as a bankers to bank. मतलब कि जब कमर्शियल बैंक को किसी भी फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है, तब या फिर किसी असिस्टेंस की जरूरत होती है इन एनी एस्पेक्ट, तब दे कैन मूव टूवर्ड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. They can act as a guide to the commercial bank. That is, the Reserve Bank can act as a guide to different commercial banks. Reserve Bank of India have many functions other than just being a apex bank. Let's move forward with the functions of Reserve Bank of India. Under the functions of Reserve Bank of India, the main function of Reserve Bank of India is to issue money. As I had told you earlier, no other bank except Reserve Bank of India have the right to issue money. That is, to issue monetary, we can say currency or notes or coins. Only the Reserve Bank of India have the right to. Excuse me, ma'am. Yes, sir. मैम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए ना. Oh, sorry, sir. आप पढ़े जा रही हैं मैम, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. मैम एक्सप्लेन विथ हिंदी. Okay, I'll explain you in Hindi. फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के? जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक क्या होता है. सेंट्रल बैंक जो होता है वो मेन बैंक होता है किसी भी कंट्री का. इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है? सबसे पहला जो मेन काम है उनका वो है किसी भी कंट्री के करेंसी को बनाना, ठीक है, इश्यू करना. अब करेंसी में वो कॉइन्स भी हो सकते हैं, वो नोट्स भी हो सकते हैं, और वो और भी तरीके के जो भी उनके रिक्वायरमेंट है वो हो सकते हैं. इसके अलावा जो है सेंट्रल बैंक जो है उसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं. उसके अलग अलग फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन तो ये था कि इश्यू करते हैं वो करेंसी. उसके अलावा क्या करता है? वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी बैंकिंग सिस्टम. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब भी कमर्शियल बैंक्स अगर कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो इकोनॉमी में वो सही नहीं हो सकता है, इकोनॉमी में नॉर्मल लेवल ऑफ पीपल के लिए वो सही नहीं हो सकता है, तो वैसे केस में क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बीच में आकर हेल्प करता है. आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर. चलिए, दूसरा हमारा फंक्शन जो है वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. मतलब क्या होता है, जब भी सेंट्रल बैंक जो है सेंट्रल बैंक जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर का रूप यूज करती है, या फिर वो बोल सकते हैं एजेंट के लिए एज एन एजेंट भी एक्ट करती है, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है कि गवर्नमेंट को कुछ तुरंत में फाइनेंशियल नीड की जरूरत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को. इसके अलावा अगर सेंट्रल बैंक को कभी किसी एजेंट की जरूरत हो सकती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलता है कि प्लीज एक्ट एज एन एजेंट. तब क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या होता है, एक्ट करता है एजेंट की तरफ, एजेंट के लिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. क्या करता है जब वो एजेंट बनता है? वो सिक्योरिटीज को क्या करता है? खरीदता है और बेचता है. अब सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने से क्या होगा इकोनॉमी में? देखिए, जब कभी भी एजेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है तो क्या कर रहा है? मार्केट से पैसा वो बटोरने की कोशिश कर रहा है. तो उससे क्या होगा? जो क्रेडिट सप्लाई हो रही है मार्केट में वो थम जाएगी. पर अगर वो सिक्योरिटीज खरीदने के लिए आ रहा है
तो कैश मार्केट में ज्यादा आएगा और क्रेडिट सप्लाई फिर बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत मेजर स्टेप है मार्केट में क्रेडिट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। तो जब भी क्रेडिट सप्लाई बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई को कहेगा कि प्लीज एक्ट एज एन एजेंट एंड देन हेल्प द इकोनॉमी। फिर देखिए, अगर फाइनेंशियल एडवाइजर की तौर पे अगर गवर्नमेंट चाहेगा तब भी वो आरबीआई से मदद ले सकता है। कैसे ले सकता है? फाइनेंशियल एडवाइजर में ऐसे अगर कुछ पॉलिसीज बनाने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो जानना चाहेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो इससे क्या होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर कर देगा कि अगर ये पॉलिसीज आप लागू करते हैं इकोनॉमी के लिए, तो ये मॉनेटरी जो एस्पेक्ट है वो फुलफिल होंगे और ये जो है एस्पेक्ट्स इससे डीमेरिट्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक और जो पॉइंट जो मैंने पहले ही बोला था, बैंकर्स बैंक। देखिए ये क्या है? मेन बैंक है, यानी कि ये फादर फिगर है बाकी ऑल द कमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, तो जो जब भी कोई डिसीजन लेना है कमर्शियल बैंक को, उनका अपना एक डिसीजन सेक्शन है, वो एक दायरे के अंदर कमर्शियल बैंक सारे डिसीजन वो खुद लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो दायरा पार होता है तो वो सारे डिसीजंस को लेने के लिए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। अदर देन दिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक गाइडलाइन प्रिपेयर करता है कि सारे कमर्शियल बैंक्स को ये स्टेप्स हैं और ये रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने हैं। इससे क्या होता है कि सारे कमर्शियल बैंक्स में क्या बनी रहती है? सेफ्टी बनी रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी रहता है। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एपेक्स बैंक है, ताकि इसका मतलब क्या है? वो बैंकों का बैंक है, यानी बैंकर्स बैंक है। और सेंट्रल बैंक जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उनका रिलेशन उनके सारे कमर्शियल बैंक से वैसा ही रिश्ता है जैसा हर कमर्शियल बैंक का उनके अपने कस्टमर से रिलेशन है। ठीक है, सो आरबीआई ये का ब्रांच है मैम, कमर्शियल बैंक है ना? नहीं, ब्रांच नहीं है। आरबीआई मेन बैंक यानी सेंट्रल बैंक यस है। मैम, उसके उसके नीचे अंदर सारा बैंक आता आरबीआई है। जो है, हाँ, पब्लिक के लिए काम करने के लिए उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को अप्रूव किया मतलब है और उनके हम्म, गाइडलाइंस है। और क्योंकि आरबीआई पब्लिक को सर्व नहीं कर सकता है डायरेक्टली, वो पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकता है, यस मैम, वो कमर्शियल इसीलिए बैंक को देगा। वो कमर्शियल कनेक्टेड है बैंक। सब एक दूसरे से। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुपरविजन ऑफ बैंक। अब रिजर्व बैंक जो है वो क्या करता है? इस तरीके से जब वो गाइडलाइन निकालता है तो क्या होता है कि वो सारे बैंक पे अपना एक टैब रखता है कि कोई भी बैंक किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसे को इकोनॉमी में ना ही बढ़ाए, ना ही इकोनॉमी में जाने से रोके। क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा कि जो अगर एक्सेस पैसा चला जाता है तो इकोनॉमी क्या हो सकती है? फॉल कर सकती है, या फिर पैसे जाने चाहिए पर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि बैंकर्स जो कमर्शियल बैंक उनके खुद के कुछ सेल्फ प्रॉफिट मोटिव हो सकते हैं। इस चीज को यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए सुपरविजन भी मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइजर की तरफ से काम करता है। अब देखिए एक और पॉइंट क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो जो अगर कमर्शियल बैंक किसी भी हाल में फाइनेंशियली बहुत बुरे हालात में है, बहुत बुरे तरीके से फंस गया है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल अकोमोडेशन में, तो क्या होता है कि वो जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ। जैसे एक नॉर्मल हम लोग डे टू डे एग्जांपल में लेते हैं कि जब हमें कभी पैसे की जरूरत होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम लोग अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं पैसे के लिए, वी लुक अप टू देम। तो वैसे सिनेरियो में बिल्कुल सेम सिनेरियो है कि जब कभी भी कमर्शियल बैंक कुछ ऐसे फाइनेंशियल सिनेरियो में फंस जाता है जहां पर उसे दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करता है? वो मैम वो कब फंसता है? सेंट्रल बैंक के पास जाता है। सेंट्रल मैम बैंक जो है वहां पे अब इन्हें कमर्शियल लोन कमर्शियल देता है। बैंक कब फंसता है मैम ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में? सॉरी, आप फिर से जोर से बोलेंगे? वो समझ में नहीं आया मैम, वो कैसे फंसता है फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक जैसे तो? कि अगर फाइनेंशियल स्टेटस कैसे फंसना है, अगर मान हाँ मैम। लीजिए किसी ने अचानक से आप कोई बहुत जैसे कि मान लीजिए मिस्टर अमिताभ बच्चन किसी बैंक में उनका जो अकाउंट है उन्होंने काफी सारे अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रखे हैं, ठीक है, काफी बिग हम्म। अमाउंट है, और अचानक से उनको निकालना है कि 500 करोड़ उनको विड्रॉ करना है अपने अकाउंट से, ठीक है। यस हो मैम। सकता है कि उस मोमेंट पे उस बैंक के पास उतना कैश नहीं है, ठीक है,
और मिस्टर अमिताभ बच्चन ने बोला है कि दिस इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट, आप प्लीज मुझे इतना कैश फॉर्म में चाहिए, तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए। तो ऐसे सारे सिनारियो में, एक ये मैं हाइपोथेटिकल सिनारियो आपको बता रही, ऐसे बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे कमर्शियल बैंक फंस जाता है कि फाइनेंशियल उसके पास उतना असिस्टेंस नहीं है प्रेजेंट मार्केट। तो वो क्या करता है, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि आई नीड सच एंड सच अमाउंट ऑफ लोन, फिर मैं आपको इतने ड्यूरेशन में रिटर्न करूंगा। अब ये ड्यूरेशन जो होता है वो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक आरबीआई अपने अंदर में डिसाइड करता है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्ट करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह। अब क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम लोग Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? जब भी कभी सेंट्रल बैंक में, जब भी कभी देखिए सेंट्रल बैंक जो है वो कस्टोडियन है, किसका है? नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। जो सेंट्रल बैंक है वो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास हर कंट्री में उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उसको वो मेंटेन करता है। इससे क्या होता है कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है, या फिर एक्सचेंज होता है, तो उसको बरकरार रखने का काम भी है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जब भी कोई इंसान बाहर से हमारे कंट्री आता है तो वो क्या करता है, वो करेंसी चेंज करता है ना, या फिर हम कहीं और जाते हैं तो हम करेंसी चेंज करते हैं। ये भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इसको भी मेंटेन करना, और इसका भी एक्ट करता है गार्जियन के जैसे सेंट्रल बैंक, ठीक है। देखिए एक और इसका फंक्शन क्या है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो फंक्शन करता है क्लियरिंग हाउस का। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लीजिए बैंक ए जो है वो रिसीव करता है एक चेक 10,000 रुपए का, जो कि दूसरे बैंक से हुआ, ठीक है। और जो बैंक बी जो है वो रिसीव करता है चेक 15,000 का पुराने बैंक यानी बैंक ए के नाम पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, बोथ बैंक ए एंड बैंक बी हैव देयर अकाउंट विद सेंट्रल बैंक, ओके। सब बैंक का जो अपना सारे कमर्शियल बैंक का अपना बैंक अकाउंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो चेक्स हैं, दोनों जो चेक्स हैं वो क्या कर लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू क्लियर करा देंगे। इससे क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो क्लियरिंग यानी कि जो क्लियरिंग है वो सेंट्रल बैंक जो है जैसे कि अगर दो इंसान के बीच का, यानी कि नॉर्मल पब्लिक डीलिंग में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई चेक और हम बैंक के पास जाते हैं, वो बैंक क्लियर कर देता है। लेकिन बैंक का ही दूसरे बैंक पे जब चेक रहता है, ठीक है, यानी बैंक ए ने बैंक बी पे ड्रॉ किया है और बैंक बी ने बैंक ए पे ड्रॉ किया है, तो वो किनके पास जाएंगे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, इसको क्लियर करेगा, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी सेंट्रल बैंक का, किसी भी कंट्री के किसी भी सेंट्रल बैंक का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये जो है ये डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि किसी भी इकोनॉमी में कितना क्रेडिट जनरेट होगा, क्या उसका सप्लाई होगा और क्या वो डिमांड होगा। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी में असर पड़ सकता है, अगर वो कम हुआ तब भी लोगों को असर हो सकता है। तो क्या रेशियो होना चाहिए, कब होना चाहिए, कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना डिक्रीज होना चाहिए सप्लाई ऑफ मनी, ताकि जो क्रेडिट क्रिएशन है कमर्शियल बैंक के द्वारा वो सही से बना रहे। तो ये भी जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया है पॉइंट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल कैसे करेगा फ्लो ऑफ क्रेडिट को एक इकोनॉमी में। इसके लिए जो है दो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड किए गए, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में देखिए क्या है, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है, बैंक रेट पॉलिसी यानी बैंक रेट जो वो रेट है जो कि सेंट्रल बैंक
जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो कितने इंटरेस्ट पे देगा, क्या ब्याज दर है उनका, वो डिसाइड करते हैं सेंट्रल बैंक। और इससे ये डिसाइड होता है कि जो कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसका परसेंटेज क्या है। उससे क्या होगा कि जो फिर जब जब भी अगर कम दर पे ले रहा है यानी कम इंटरेस्ट पे ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट उसी अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, द बैंक रेट क्या है, द बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। Increase or decrease in the bank rate is often followed by the increase or decrease in the market rate of interest. अगर कोई सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से मान के चलिए कि लोन ले रहा है 10% के ब्याज पे, ठीक है, 10% ज्यादा है अगर, तो अगर वो ज्यादा महंगा लोन ले रहा है तो वो लोन सप्लाई जब मार्केट में करेगा तो क्या करेगा, वो भी हाइयर इंटरेस्ट पे करेगा। अगर सेंट्रल बैंक उसको कम रेट पे दे रहा है तो वो क्या करेगा, मार्केट पे कम रेट पे डालेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि मनी सप्लाई जो है मार्केट का, मार्केट रेट जो है वो भी डिसाइड करता है इनडायरेक्टली, इसी से डिसाइड होता है। ठीक है, बैंक रेट समझ में आया। ये कैसा रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है तो उस रेट पे देता है, यानी वो इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अब हम लोग Yes, पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट Hello, ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन हेलो मैम। रेफर्स टू द, हाँ बोलिए। मैम कह रहा है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को 10% या 5% कैसे निर्धारण करता है कि उस कमर्शियल बैंक पे परफॉर्मेंस पे पहला कमर्शियल है बैंक को उसका। देखिए, जब अगर कमर्शियल बैंक का परफॉर्मेंस, उसका क्या रोल रहा है इकोनॉमी में उनके लोगों के Yes, लिए, ma'am. और लोगों का रिटर्न रेट क्या सही चल रहा है, और वो किस पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड, जो कमर्शियल बैंक लोन ले रहे हैं सेंट्रल बैंक से, वो किस पर्पस के लिए वो देंगे, या वो बिजनेस पर्पस है या वो पर्सनल लोन पे देंगे, वो किस एस्पेक्ट पे वो लोन ले रहे हैं, ये सारे चीज निर्धारित करती है कि वो रेट क्या होगा। ठीक है, इकोनॉमी का रेट सब कुछ, बहुत सारे एस्पेक्ट है, जैसे कि मान के चलिए अगर वो बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं या फिर वो पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए लोगों को कमर्शियल बैंक ले रहे हैं, तो वैसे सिनेरियो में सेंट्रल बैंक ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो रेट तय करता है। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने के बाद रेट तय करता है हाँ सेंट्रल बैंक। हाँ। थैंक यू। देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। यानी कि जब ओपन मार्केट में किसी भी सिक्योरिटीज का सेल या फिर परचेज करते हैं सेंट्रल बैंक, तब उसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। देखिए, अब ये जो सिक्योरिटीज हैं जैसे कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है परचेज या सेल करेगा, तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए वो परचेज कर रहा है तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में से कैश जो है वो विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक विड्रॉ कैश बैलेंसेस फ्रॉम द इकोनॉमी। और अगर वो परचेज कर रहा है, यानी कि अगर वो बाई कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, इकोनॉमी में कैश बैलेंस को ऐड कर रहा है। तो ये जो कैश बैलेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और इससे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैश बैलेंस जो है अगर इंक्रीज होता है तो फ्लो ऑफ क्रेडिट भी इंक्रीज हो जाएगा मल्टीप्लायर इफेक्ट से। और अगर कैश बैलेंस कम हो जाता है तो फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या है, कम हो जाएगा मल्टीप्लायर इफेक्ट से। इससे क्या हो गया कि जो सेंट्रल बैंक है वो सेलिंग और परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज से डिसाइड कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं रेगुलेट कर सकता है, किसी भी मार्केट में कैश बैलेंस को कितने लेवल पे बनाए रखे। ठीक है, ये है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर देखिए क्या है, चेंज इन सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि जो मिनिमम परसेंटेज है ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट। देखिए, जब भी कोई कमर्शियल बैंक है तो उसका एक गाइडलाइन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके तहत ये है कि हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल सेविंग से, टोटल डिपॉजिट से कुछ परसेंटेज जो है, जो मिनिमम परसेंटेज है, वो
क्या करना है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो ये इंश्योर करता है कि हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम परसेंट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखे। कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक हैव टू कीप दिस अमाउंट विद द सेंट्रल बैंक एज अ रिजर्व एज अ मैटर ऑफ लॉ। ये लॉ है, ये कमर्शियल बैंक का सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, ये लॉ है कि हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कुछ अमाउंट जो है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट वो रखना पड़ता है। इससे क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या। अगर मान के चलिए कि किसी भी कमर्शियल बैंक का या फिर किसी भी मिनिमम रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, ठीक है, वो कोई भी बैंक का 10% हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक बैंक जो है उनके पास 100 करोड़ रुपीस हैं, ठीक है, तो उन्हें 10 करोड़ रुपए क्या है सेंट्रल बैंक के पास एज अ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मिनिमम रिजर्व रेशियो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो 20% कर देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उन्हें 20 करोड़ रखना पड़ेगा। और अगर वो घटा के 5% कर देते हैं तो उन्हें 100 करोड़ का 5% 5 करोड़ रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, व्हेन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी इंक्रीज, मिनिमम रिजर्व रेशियो इज रिड्यूस्ड। अगर फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या हो गया, अगर बढ़ जा रहा है तो मिनिमम रिजर्व रेशियो क्या है वो घट जाएगा। और अगर फ्लो ऑफ क्रेडिट जो मार्केट में है वो घट गया है तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या है मार्केट में, तो हम लोग उस हिसाब से कैश रिजर्व रेशियो को फिक्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या था, SLR, इसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी मैम रेशियो। आगे नेक्स्ट क्लास भी है हम लोग का। ओके, तो शैल आई एंड दिस राइट नाउ? यस यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, Okay, ma'am. थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम। बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। हेलो क्लास, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब क्लास कैसे है तुम लोगों का? सर हम लोग का पहले क्लास से है बहुत- नीतीश सर का। नीतीश सर का सर। ओ अच्छा, दोनों बैच का? नो नहीं सर, सर, वो वाले का नहीं है। 445 का है। अच्छा ठीक, नहीं आज कैंसिल करते हैं। तो मेरा टाइमिंग है वो तो दोनों बैच को मिला के 12 से 1 में है ना? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सर अटेंडेंस। थैंक यू सर। ओके सर। अटेंडेंस आप लोग लेकर के हमको भेज दीजिए। यस एक सर, एक अंकित भेज अंकित एंड देगा। एक संदीप, ठीक है। चलिए वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.